Hello and welcome. This is lecture number 15. In this lecture, we will discuss on principles of deadlock. As we know that the term deadlock, that means we have a limited number of resources and we start allocating resources to a process very wisely. We cannot allocate any resource to any process without thinking that how much resources they are required and how many resources that we have. Before calculating, we would not allocate resources to the process because computer systems are full of resources that can be used by one process at a time. Okay, so common examples like we mostly use resources, for example printers, tape drives, and computer slots and computers internal tables, that is main resources which is commonly used by the process. So for any instances or for any processes that need exclusive access of one resources, and process may be required, may be intended to access many resources. For example, we can take an example like process P1. Suppose process P1 requesting to resource printer 1, printer 1 allocated to process P1. There is another process P2 requesting to scanner, and scanner is allocated to process let's have a write like that, scanner P2 process is requesting for a scanner, and P2 assign the scanner because it was free, and in that case again P1 assign a printer 1. So we have a one printer and one scanner. Let's make the nomenclature of the devices: scanner 1 and printer 1. P1 is requesting to printer P1. Printer 1 is free and we can allocate printer 1 to process P1. Right, this is the allocation graph, this is requesting graph, this is requesting graph, and this is allocating graph. So we can use these diagrams if we want to represent a graphical representation of requesting and allocation of process and resources. So before printer resources and process, if there are some requesting and some allocation will need, we can use the graphics over here. So in this diagram what we are doing is P1 is requesting to printer 1. Printer 1 was free. Printer 1 is allocated to process P1. In the same time, process P2 requests to the scanner 1. Scanner 1 was free. Scanner 1 is allocated to the process P2. Right. Now deadlock may be occur if there is another process P3 start pointing to that devices which is known as printer 1, but due to some reason, because printer 1 is not free,
at this time because it is allocated to process P1, so we cannot allocate it to process P3. We cannot allocate printer 1 to process P3 because it is already allocated to process P1, right? So due to some reason we cannot assign printer 1 to process P3 cause already allocated to process P1. Okay, now at the same time, if process P4 requesting to scanner resource, and what we are looking here, scanner is already allocated to process P2. So again scanner is not free, we cannot allocate it scanner to process P4. We can allocate it to scanner P4, process P4 until P2 release that scanner once. Okay, so as soon as the P2 release the scanner 1, we can allocate scanner to process P4, right? So that is again a second reason we cannot allocate scanner 1 to the process P4. So in this case process P3 and P4 goes in waiting queue and it start waiting for the resources. P3 start waiting for printer 1 and P4 start waiting for scanner 1, right? Maybe the waiting is short or maybe it may a long waiting time in the waiting queue. So somehow we have to manage, that is the condition of deadlock. Okay, so let's define the term deadlock. How we can define the term deadlock? A set of process is in a deadlock state if each process in the set is waiting for an event that can be caused by only another process in the set. So a set of process is in deadlock state. कुछ प्रोसेस का सेट डेडलॉक स्टेट में आ सकता है. हम कह सकते हैं यदि each process in the set is waiting for an event, उसमें से उस स्टेट की हर एक प्रोसेस किसी के इवेंट का वेट कर रही है that can be caused by only another process in the set, और वो इवेंट का वेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के पास एंगेज्ड है, राइट? सो P3 एंड P4 यहाँ पर इवेंट का वेट कर रही है. इवेंट यहाँ पर इनके रिलीजिंग का होगा, राइट? एक ऐसा इवेंट होगा जब प्रोसेस P2 स्कैनर को रिलीज़ करेगी. एक ऐसा इवेंट होगा जब प्रोसेस P2 P1 प्रिंटर को रिलीज़ करेगी. इस इवेंट का वेट हो रहा है प्रोसेस के थ्रू, और वो प्रोसेस इन सेट में से कोई एक हो सकती है. लाइक P1 P2 P3 P4 वी हैव 4 process in a set. So P4 and P3 are waiting for releasing the resources. So process P3 and P4 waiting for the event that can be caused by another process in the set. So जैसे ही प्रोसेस P1 and P2 प्रिंटर और स्कैनर को रिलीज़ करते हैं, प्रोसेस P3 and P4 उन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करेंगे. So resource is being granted to the process P3 and the scanner 1 is being granted to the process P4, right? But before allocating a resources, we can say our process is in deadlock state, right? Okay, in other words each member of the set of deadlock
processes is waiting for a resources that can be released only by a deadlock process. Okay, none of the processes can run. That is the effect of deadlock. If in a system there is deadlock, then what might happen is that none of processes can run, none of processes can release any resources, and none of them can be awakened. Okay, so this may be happen if the deadlock occurs. Awaken call, right? Now let's discuss more briefly more about the deadlock, how deadlock occurs in a computer system. Okay, in this diagram what we have seen here, as you can see, there is a traffic, one circle, there is one conjunction, another conjunction, and there is actually 4 junction: junction 1, junction 2, junction 3, junction 4. All junctions are engaged. As you can see here, there is a traffic in this direction, maybe there is car, there is bike, any vehicles, they are start moving in this direction. There is another direction, as you can see here, this is that direction and this is going on that direction. So we have 4 junction, but every junction has blocked by the vehicles. No one vehicle can move in any junction. As you can see here, this junction is already blocked, so that vehicle again cannot able to move in this direction because there in that place there already a vehicle available. In the same way, this vehicle again cannot able to move due to this vehicle. This vehicle again cannot able to move due to this vehicle. So all together they combinedly create a deadlock, right? So in this circle, in this junction, again there is deadlock, again deadlock and deadlock. So there is 4 deadlock in system. So we can say a system is in deadlock if there is no process access the resources, no process cannot able to release the resources, and no other process able to accept the resources. So that is the effect which already I have discussed, that none of process can run, none of process can release any resources, and none of them can awaken, right? This is actually deadlock, right? So there are 4 necessary conditions which must have in the system if system is in deadlock. So let's discuss on 4 necessary condition. यदि वो 4 कंडीशन एक साथ किसी सिस्टम में आती है तभी हम कहेंगे कि आवर सिस्टम इज इन डेडलॉक, अदरवाइज सिस्टम डेडलॉक में नहीं आएगा. So let's discuss
What kind of four conditions are there? There are four necessary condition for deadlock occurs. First is mutual exclusion. Second is hold and wait. Third is no preemptions, and fourth is circular wait. There are four necessary conditions. That four necessary condition must be is in the system if and only if the deadlock comes into the system. Suppose इन चारों कंडीशन में से कोई तीन कंडीशन यदि आती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में है, राइट. सो ये चारों कंडीशन एक साथ हमारे सिस्टम में आनी चाहिए, इस सिस्टम में आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये सिस्टम डेडलॉक में है. इसके कारण कोई भी रिसोर्सेज रिलीज नहीं हो पा रहा है, कोई भी प्रोसेस चल नहीं पा रही है, सब कुछ डिस्टर्ब है, सब कुछ एंगेज्ड है, राइट. ओके, देखते हैं ये चारों कंडीशन इस सिस्टम में कैसे डेडलॉक बनाती है, राइट. लेट्स डिस्कस ऑन फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि किन्हीं भी दो प्रोसेस के बीच में एक शेयरेबल रिसोर्सेस है तो डेफिनेटली वहाँ पर डेडलॉक आएगा, राइट. सो लेट्स राइट इट. एट लीस्ट one resources held by one process, there must be at least one resources in the system cannot be shareable simultaneously by more than one process. एक प्रोसेस के थ्रू एक ही रिसोर्स एंगेज होना चाहिए. यदि किन्हीं दो प्रोसेस के बीच में एक शेयरेबल रिसोर्स है तब वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा, और यदि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ तो इन चारों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ओके. और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे सिस्टम में डेडलॉक आने की. सो एटलीस्ट वन रिसोर्सेज हेल्ड बाय वन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. एक प्रोसेस के थ्रू एक ही रिसोर्स एंगेज होना चाहिए. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन अ सिस्टम कैन नॉट बी शेयरेबल साइमल्टेनियसली. और जिस प्रोसेस ने जो रिसोर्स हेल्ड किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी रिसोर्स को किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू एंगेज नहीं होना चाहिए, और स्पेशली उस केस में जब वो रिसोर्स शेयरेबल है. तो सबसे पहले कंडीशन तो ये कि शेयरेबल रिसोर्स होना ही नहीं चाहिए. यदि हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचाना चाहते हैं तो हम उस सिस्टम के अंदर शेयरेबल रिसोर्स यूज़ ही ना करें, राइट. और यूज़ कर भी रहे हैं तो केवल एक ही प्रोसेस के थ्रू उस रिसोर्सेज को आप यूज़ कराइए, राइट. और यदि शेयरेबल रिसोर्सेज किसी दूसरी प्रोसेस ने एक्सेस किया, उस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के कारण डेडलॉक आ सकता है सिस्टम के अंदर. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. एटलीस्ट वन रिसोर्स हेल्ड बाय वन प्रोसेस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन द सिस्टम कैन नॉट बी शेयरेबल साइमल्टेनियसली by more than one process. As you can see the diagram, this is junction. You can treat as a resource, right? That is process. If this junction is using by this direction traffic of this traffic, that cannot be shareable by this in this direction, right? So this junction cannot be shareable by this traffic, okay. यदि उसने डेडिकेटेडली इस डायरेक्शन को यूज़ किया हुआ है
तो इस जंक्शन पर इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। ओके, डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है? क्योंकि यदि इस डायरेक्शन में कोई ट्रैफिक जा रहा है, इस जंक्शन को यूज़ कर रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यदि होगा तो इस डायरेक्शन से भी आप अलाउ करेंगे, इस डायरेक्शन से भी अलाउ करेंगे, अल्टीमेटली डेडलॉक आने के चांसेस रहेंगे। तो इस सिस्टम में हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं करना है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन पहली नेसेसरी कंडीशन बनती है डेडलॉक आने की। ओके, तो एक समय पर एक ही डायरेक्शन पे आप अलाउ कीजिए, एक समय पर आप दो डायरेक्शन को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है, इस जंक्शन में आप इस जंक्शन को यदि आप अलाउ नहीं करते तो ये आप डायरेक्ट फ्लो करवा सकते थे, यहाँ से सीधा फ्लो हो सकता था, बट आपने सभी जंक्शन को ऑन रखा हुआ है। ये सभी जंक्शंस है और ये शेयरेबल रिसोर्सेस है, आप उनको उसके जैसे ट्रीट कर सकते हो। और यहाँ पे ये प्रोसेस है, प्रोसेस किसी भी शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस करती है और आगे जाके जंक्शन में कंजक्शन हो सकता है। राइट, सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस डायग्राम में आपको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि किसी भी शेयरेबल रिसोर्सेस का दो प्रोसेस के थ्रू एक्सेस नहीं करवाना है। राइट, सो एटलीस्ट वन रिसोर्स हेल्ड बाय वन प्रोसेस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन द सिस्टम कैन नॉट बी शेयरेबल साइमल्टेनियसली बाय मोर देन वन प्रोसेस। यदि ऐसा होगा तो डेडलॉक सिस्टम में होगा। ओके, सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, दैट मीन्स प्रोसेस इज requesting to other resource while holding other resource। एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखेगी और वह दूसरी रिसोर्स की रिक्वेस्ट भी करेगी, और जो प्रोसेस जिस रिसोर्स को होल्ड की हुई होगी, होल्ड किए हुए रिसोर्स की रिक्वेस्ट कोई दूसरी प्रोसेस कर रही है। ओके, the process is requesting to other process other resources while holding other resources. If this happen, if these things true, it leads to deadlock. Right, so after execution process must relinquish the resources। जैसे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसे उस रिसोर्स को रिलीज करना चाहिए। राइट, as you can see the diagram, hold and wait, this is junction already held by this resource, this process, but it is requesting to this junction। एक रिसोर्सेस ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ और दूसरा रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस जंक्शन के लिए प्रोसेस ने ये जंक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है और वो इस डायरेक्शन में इस जंक्शन की रिक्वेस्ट कर रही है, इस जंक्शन की। एज यू कैन सी हियर, दिस इज जंक्शन। इन द सेम वे प्रोसेस इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की प्रोसेस ने इस जंक्शन को यूज़ करके रखा हुआ है और वो चाहती है कि ये जंक्शन उसे मिल जाए ताकि वो सीधा फ्लो आगे निकाले, सीधी गाड़ियाँ मतलब आगे निकले। सो होल्ड एंड वेट कंडीशन में प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखती है और दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है। यही रीज़न होता है कि डेडलॉक इसके कारण लीडिंग में जाएगा। हो सकता है डेडलॉक सिस्टम में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, थर्ड कैटेगरी इज नो प्रीम्पशन। वंस अ रिसोर्स इज allocated to other process cannot be relinquished to resources। मीन्स एक बार एक रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को एलोकेट हो गया तो एग्जीक्यूशन के बाद भी वो रिसोर्सेज रिलीज नहीं हो पा रहा है, प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है उस रिसोर्स को रिलीज़ करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक बार रिसोर्सेज को हम एलोकेट करें तो आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रोसेस मस्ट रिलिंक्विश द रिसोर्सेज, क्योंकि उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट किसी दूसरी प्रोसेस को हो सकती है। राइट, सो नो प्रीम्पशन नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रिमिटिव
या प्रीम्पशन कैटेगरी की ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होनी चाहिए, और प्रोसेस का नेचर भी प्रीम्पशन होना चाहिए, राइट। सो वंस अ रिसोर्स इज एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस कैन नॉट बी रिलिंक्विश्ड टू रिसोर्सेज। एक बार किसी रिसोर्सेज को हम किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दें तो वो रिसोर्स रिलिंक्विश नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं नो प्रीम्पशन, और इसके कारण भी डेडलॉक लीडिंग पर होगा, बढ़ सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगेन, इस डायरेक्शन पर जो ट्रैफिक है उन व्हीकल ने इस जंक्शन को यूज़ करके रखा हुआ है और वो इसे रिलीज़ करना नहीं चाहती है, और अगेन इस डायरेक्शन को वो, इस जंक्शन को वो रिलीज़ करना चाहती है। सो एक रिसोर्स उन्होंने एंगेज करके रखा हुआ है और वो उसे रिलीज़ करना नहीं चाहते, राइट। सो प्रोसेस किसी भी रिसोर्सेज को यदि लॉन्ग टाइम तक एक्सेस करती है तो भी डेडलॉक आएगा, राइट। एज यू कैन सी द डायग्राम, राइट, दिस इज द जंक्शन J1। जंक्शन J1 किसी प्रोसेस के थ्रू एंगेज्ड है और वो प्रोसेस उस जंक्शन को रिलीज़ नहीं करती है। ड्यू टू दिस रीज़न इस डायरेक्शन का ट्रैफिक जाम हो चुका है, एंगेज्ड हो चुका है, क्योंकि ये जंक्शन फ्री नहीं है, राइट। एंड फोर्थ इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का कॉन्सेप्ट, सपोज प्रोसेस P1 is requesting to resource R1, right, and R1 is already allocated to process P2. That makes a circular queue. That makes a circular deadlock. So P1 is requesting to R1 and R1 is allocated to P2. Sorry, P2 in this direction and the resources is R2, R1, sorry, okay. So R1 is allocated to P2, sorry, P1, sorry, it's okay. P1 is requesting to R1 and R1 is allocated to P2, right. In this case there is a circular deadlock. P2 जब R1 को रिलीज़ करेगी तभी P1 को R1 मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसी तरह हम 2 प्रोसेस में, 4 प्रोसेस में, n प्रोसेस में हम सर्कुलर वेट बना सकते हैं, जहाँ पर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू एंगेज होगा, अगेन वो प्रोसेस की रिसोर्स की किसी प्रोसेस के थ्रू रिक्वेस्ट चलेगी, और जो रिक्वेस्ट करेगी उसके पास भी कोई प्रोसेस होल्ड करके रख सकता है। दैट मेक्स अ सर्कुलर डेडलॉक, राइट। सो दैट इज़ द 4 नेसेसरी कंडीशन विच वी हैव डिस्कस्ड हियर। ये चारों नेसेसरी कंडीशन मिलकर ही किसी सिस्टम में डेडलॉक बनाती है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आया, स्टॉप एंड होल्ड भी हुआ, नो प्रीम्पशन भी है और सर्कुलर वेट भी है। इन चारों को यदि आप मिला दें तो ये सर्कुलर वेट में फंस चुकी हैं। ये व्हीकल इस जंक्शन के रिलीज़ होने का, ये डायरेक्शन वाली व्हीकल इस जंक्शन के रिलीज़ होने का वेट कर रही है, इस डायरेक्शन वाली व्हीकल इस जंक्शन के रिलीज़ होने का वेट कर रही है, इस डायरेक्शन वाली व्हीकल इस जंक्शन का रिलीज़ होने का वेट कर रही है, और इस डायरेक्शन का ये। सो कंबाइंडली यदि हम तीनों कंडीशन मिला दे तो एक सर्कुलर वेट बनता है। देख सकते हो आप इस डायग्राम में सर्कुलर वेट। तो चारों कंडीशन का एक सिस्टम में होना ज़रूरी है। यदि डेडलॉक, हम कहें कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में है, तो वो चारों कंडीशन यहाँ पर होनी ज़रूरी है, राइट। इफ़ देर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस आर अकर इन अ सिस्टम, वी कैन से अवर सिस्टम इज़ इन डेडलॉक, अदरवाइज देयर इज़ नो डेडलॉक। अच्छा, इन तीनों में, चारों में से यदि हम एक भी कंडीशन रिमूव कर दें तो हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से बाहर कर सकते हैं, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू
remove at least one condition among the four, right? We can remove one condition and we can say our system is in safe state, it is not in deadlock state. For example, there is first condition कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यदि आता है, ठीक, हम यदि एक ही डायरेक्शन के ट्रैफिक को अलाउ करें, हम इस जंक्शन को शेयरिंग मोड पर नहीं रखना चाहते हैं. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे अचीव हो सकता है, प्रिवेंट कैसे हो सकता है, लेट्स डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट डेडलॉक इन अ सिस्टम. सो सिस्टम में यदि हम डेडलॉक को रिमूव करना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो इन चारों कंडीशन को हमें वाइजली यूज़ करना होगा. लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम कैसे यूज़ करें कि सिस्टम में डेडलॉक नहीं आए. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, हम किसी भी रिसोर्सेज को शेयरिंग मोड पर ना रखें. वी डू नॉट अलाउ टू एनी रिसोर्सेज इन शेयर मोड. दैट इज़ अ सिंपल रीज़न. क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ रहा है इसलिए क्योंकि हम शेयरिंग मोड पर किसी रिसोर्स को रखते हैं. हम शेयरेबल रिसोर्सेज यूज़ ही ना करें, हम केवल एक ही डायरेक्शन को अलाउ करें, एक समय पर एक ही डायरेक्शन को अलाउ करते हैं, तो कभी भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, तो डेडलॉक नहीं होगा. सो ट्रैफिक ओनली अलाउ इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट विल ऑटोमेटिकली रिमूव द डेडलॉक इन अ सिस्टम. सो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली प्रोसेस को हटा देगा, राइट. सो हाउ वी कैन अचीव अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? via to allow only one direction traffic, right? So इस तरह से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन के ट्रैफिक को अलाउ करें. दैट इज़ द वे फॉर रिमूविंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन आवर डेडलॉक सिस्टम. तो फर्स्ट कंडीशन रिमूव हो गई. सेकेंड कंडीशन, होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? होल्ड एंड वेट, दैट मीन्स यदि हम होल्ड एंड वेट कैसे आया है पहले ये समझना ज़रूरी है. रिसोर्सेस ऑलरेडी एंगेज्ड है इस व्हीकल के थ्रू, मतलब इस डायरेक्शन पर, ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है व्हीकल का, ये इस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है, बट ऑलरेडी इस डायरेक्शन की व्हीकल्स इस जंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, राइट. होल्ड एंड वेट, यदि हम इस जंक्शन के ऊपर से कोई फ्लाई ओवर बना दें, राइट, इस तरह से एक फ्लाई ओवर बना दें, सो एक साथ ये भी प्रोसेस आगे जाएगी और एक साथ ये भी प्रोसेस इस तरह से जाएगी. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. यदि हम इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें जिससे रिसोर्सेज को एक फ्लाई ओवर मिले, प्रोसेस को एक फ्लाई ओवर मिले, जिससे कि वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपना काम करें, अपनी टास्क परफॉर्म करें, तो भी हम ये काम कर सकते हैं. हम जो होल्ड एंड वेट की जो कंडीशन है हम उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. तो यदि हम कोई भी एक ऐसी टेक्निक अप्लाई कर दें जिससे कि हमें वेट ना करना पड़े, सो इम्प्लीमेंट such techniques by which process cannot wait for shareable resources. तो होल्ड एंड वेट सॉल्व हो जाएगा. थर्ड कंडीशन जो नो प्रीम्पशंस की है, नो प्रीम्पशंस कैसे सॉल्व होगा? नो प्रीम्पशंस इसलिए आया था क्योंकि इस जंक्शन को यदि इस डायरेक्शन के व्हीकल यूज़ करते हैं, ये ट्रैफिक इस जंक्शन पर है, तो हमें पहले ही हमें ये जज करना पड़ेगा सिस्टम को कि इस जंक्शन को फ्री रखना है या नहीं रखना है, राइट. यदि ये जंक्शन ऑलरेडी एंगेज है तो हमें इसे एंगेज नहीं रखना है, ठीक. तो ये कैन नॉट फोर्सफुली, वी कैन नॉट डू फोर्सफुली. यहाँ पे हम रिसोर्सेज को रिलीज कर सकते हैं, ओके.
सो यहाँ पर हमें वाइजली डिसीजंस लेने होंगे कि यदि एक जंक्शन पर यदि हम ट्रैफिक ओपन करते हैं, सो कैसे भी हमें इस जंक्शन के बारे में डिटेल पहले पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो हमारे पास रिसोर्स की डिटेल पहले से हो कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हैं और कितनी प्रोसेसेस हमारे पास हैं, राइट। सो फॉर गेटिंग द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स एंड प्रोसेस in advance, we can manage the no preemption case. We can solve that process, we can solve this problem. Okay, so the solution is, we should have entire detail of processes and resources in advance, so that we could make a proper plan for allocating resources. हम अपने resources के allocating का एक proper plan बना सकें, right? And the circular weight is, यदि हम ऊपर के तीनों कंडीशन सॉल्व कर देंगे तो सर्कुलर वेट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, राइट। सो impose in circular weight we can say, impose a total ordering of all resources types. Again हमारे पास सभी डिटेल हो, impose a total ordering of all resources, कितने टाइप के कितने रिसोर्सेस है उन सबका ऑर्डर हमारे पास हो, and require that each process request resources in an increasing order of enumeration. सभी रिसोर्सेस हमारे पास एक ऑर्डर में हो, हमारे पास ये भी डिटेल हो कि कब कौन सी प्रोसेस किसकी रिक्वेस्ट कर सकती है, और धीरे धीरे उन रिक्वेस्टेड का ही ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे डायरेक्टली यदि कोई प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट करती है 5 प्रिंटर की, सो एट द सेम टाइम वी शुड नॉट एलोकेट 5 प्रिंटर टू अ सिंगल प्रोसेस। हमें उस समय डिसीजन बहुत वाइजली लेना होगा, बुद्धिमानी से डिसीजन लेना होगा कि क्या 5 प्रिंटर को प्रोसेस P1 को एलोकेट करने पर हमारा सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं आएगा। दैट शुड बी टेकन केयर वेरी केयरफुली। सो बिफोर एलोकेटिंग रिसोर्सेज वी शुड एनालाइज, राइट, कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी प्रोसेस हैं, और एलोकेशन करने के बाद सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं आएगा। सो दीज आर द वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक conditions in a system. Okay, I hope you getting the point. Thank you.